Dear students, Class 6, Modern English, the same story, Necobobinus, Chapter 1, second paragraph, we will start and we will know about Mo, Necobobinus and Rosie. Let us start. You can't do that at this time of the morning, said the night watchman. But before he could grab them, Rosie and Necobobinus was sprinting away as fast as they could. And they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosie's bottle of lemon smashed against the wall, and the dog leapt to its feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. For a moment, they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it wolfed them down, barked "Thank you," and ran off to tell its friends. "We are not going to get far without supplies," said Rosie gloomily. "I wonder if I could pick a few of those," said Necobobinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. "Of course you can," said Rosie. "Stand on my shoulders." So Necobobinus stood on Rosie's shoulders and climbed into the wall. But the tree was further away than he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. Necobobinus looked back up at the high wall, but there was no way he could climb back. "What am I going to do?" he yelled. I'll think of something," Rosie yelled back, crossing her fingers very hard. "Oh," said a voice behind Necobobinus. Necobobinus didn't stop to look who it was. He ran straight into a tree. "Got you," said the voice, and Necobobinus felt 5 thick fingers on his neck. "Oh," said Necobobinus. "I have been waiting for you," said the voice, and Necobobinus felt 5 more thick fingers round his wrist. But Necobobinus, instead of trying to run away, doubled himself up and went back towards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him, and he landed in a pile of leaves. "Are you all right?" called Rosie, but she didn't hear any reply except for the man, who growled, "Just you wait, both of you." "Oh dear," said Rosie, "sounds like trouble." And she was right. Now we will listen the translation of this second part. Let us start in Urdu. "तुम सुबह के इस वक्त ऐसा नहीं कर सकते," चौकीदार ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ पाता, रोजी और नेकोबॉबिनस जितनी तेज़ी से भाग सकते थे भाग उठे, और उन्होंने तब तक भागना बंद नहीं किया जब तक कि वो 3 पुलों के ऊपर से ना गुजर गए और एक कुत्ते से ठोकर खाकर गिर ना पड़े, जो एक बाग की दीवार के नीचे सो रहा था। रोजी की नींबू की शरबत की बोतल दीवार से टकराकर टूट गई और कुत्ता उछलकर खड़ा होते हुए यूं भौंकने लगा जैसे इसे लगा कि कुत्तों की क़यामत नाज़िल हो गई है। एक लम्हे को उन्हें लगा कि ये उन्हें काट खाएगा, लेकिन फिर इसकी निगाह इन 2 बन्नों पर पड़ी जो
लड़क कर बदरू में जा गिरे थे और ये इन्हें हड़प करके बॉम्ब का शुक्रिया और अपने दोस्तों को बताने के लिए भाग गया। सामान के बगैर हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, रोज़ी ने उदासी से कहा। सोचा कि क्या इनमें से चंद एक तोड़ सकता हूँ। नेको बॉबिनस ने बाग की दीवार के दूसरी तरफ लगे सेब के दरख्त को निगाह उठाकर घूरते हुए कहा, यकीनन तुम कर सकते हो। रोज़ी ने कहा, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। लिहाजा नेको बॉबिनस रोज़ी के कंधों पर खड़ा हुआ और दीवार पर चढ़ गया, लेकिन दरख्त इसके अंदाजे से ज़्यादा दूर था और जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया अपना तवाज़ुन खो बैठा और धड़म से गिर पड़ा। ऐसा शानदार बाग जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नेको बॉबिनस ने आंखें उठाकर बुलंद दीवार को देखा, लेकिन इसके वापस चढ़ने का कोई तरीका ना था। मैं क्या करूँगा, वो चिल्लाया। तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे, रोज़ी ने पूरी शिद्दत से अपनी उंगलियां क्रॉस करते हुए कहा। उसे जवाब दिया। ओए, नेको बॉबिनस के पीछे एक आवाज़ ने कहा। नेको बॉबिनस ये देखने के लिए ना रुका कि ये कौन था। वो भागा सीधा एक दरख्त से टकराने को। पकड़े गए, आवाज़ ने कहा और नेको बॉबिनस को अपनी गर्दन पर 5 मोटी मोटी उंगलियां महसूस हुईं। आओ, नेको बॉबिनस ने कहा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आवाज़ ने कहा और नेको बॉबिनस ने मज़ीद 5 मोटी मोटी उंगलियों को अपनी कलाई के गिर्द महसूस किया, मगर भागने के बजाय नेको बॉबिनस दोहरा हुआ और जितनी तेज़ी से पीछे को हट सकता था हटा। यूँ आदमी की टांगें इसके नीचे से निकल गईं और वो पत्तों के एक ढेर पर जा गिरा। क्या तुम ठीक हो, रोज़ी ने पुकार कर कहा, मगर इसे कोई जवाब सुनाई ना दिया, सिवाय इस आदमी के तरफ से जिसने उड़ा कर कहा, ज़रा ठहरो तो, तुम दोनों। ओह, रोज़ी ने कहा, मुसीबत मालूम होती है, और वो दुरुस्त थी। डियर स्टूडेंट्स, जितना हमने आज इस स्टोरी में पढ़ा है, ये आज इस स्टोरी का ये सारा होमवर्क है जो आपने अपने नीट नोटबुक पे करना है। और इसका काम जो है आप जो भी अपनी कॉपी पर करेंगे, हम जब आप स्कूल वापस आएंगे हम आपकी कॉपी चेक करेंगे और मेहरबानी से बाकायदगी से इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।